Good morning, students. Today we are going to discuss very important topic which you will use this in grade 12 also, and throughout the 11th, wherever you will discuss either it is trigonometry or some other integration or calculus or differentiation. Function will be the part of that topic. So we are going to start with the just definition of the function. What is the series? The first thing is set. Second is ordered pair. Third thing is relation. And fourth thing is function. First, set will come. If there are two sets, then ordered pair you can frame. If there are ordered pair, then relation you can frame. If there is a relation, then function you can frame. Every relation can never be a function, but every function will be a relation. Please note this step. Every relation cannot be a function, but every function will be a relation. So what is function? F is a function from A to B. A is a domain set, B is a range set. If you will make an ordered pair, first element belong to A, second element belong to B. It is going from, F means function, it is going from A to B. A is a domain, B is a range. In an ordered pair, first element will be of A, second element will be of B. If for every element of A, that means if A has a 3 elements, every element in those 3 elements, there exists a unique element of B. मीन्स अगर ए के पास 3 एलिमेंट हैं तो उन 3 एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंगली बी के पास भी कोई ना कोई ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट एग्जिस्ट होना चाहिए. सपोज ए के पास 1 है तो 1 कॉमा मे बी देयर शुड बी 2, 1 comma maybe there should be some other element. Is it clear? So that means for every element of A corresponding there exists some element in B such that f of A is equal to B. That means every domain of A must have certain range where A belongs to capital A and B belongs to capital B. A belongs to capital A, B belongs to capital B. A is a part of domain, f of A is a part of range. Is it clear? That means corresponding to every element of A there exists some element in B. Then a relation is said to be function. That means first you will make a relation, then you have to check whether the relation is a function or not. Now we will discuss what are the circumstances when the relation is said to be a function. एक relation function कब कब होगा हम उसको डिस्कस अभी करने जा रहे हैं. Suppose this is my domain set. It has certain element 1, 2, 3, 4, 5. This is my range set. That means 1, 2, 3, 4. There are 4 elements in the range set. And there are 6 elements in the codomain set. We know that range is always the part of codomain. Range is a part of codomain. Clear? Now, this element corresponding to this element again corresponding to this. That means 2 elements in the domain can have the same image. Is it clear? 2 persons maybe have the same face. 2 questions can have the same answer. Is it clear? So that means in the domain there can, please mind my words. In the domain there can be 2 elements which have the same image. Domain के अंदर कोई 2 एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं जिनका आंसर सेम हो, जिनकी इमेज सेम हो. ओके, तो अगर इस तरह का हमारे पास रिलेशन बन जाता है जिसमें पूरी की पूरी डोमेन ऑक्युपाइड है रेंज के साथ. देखो डोमेन में कोई भी एलिमेंट ऐसा खाली नहीं है जिसकी इमेज एग्जिस्ट नहीं करती. Every element of the domain has set image. Every element of the domain has the same range. 2 elements of the domain can have the same range. I spoke. 2 elements in the domain can have the same range. This is called many one function. तो इस तरह के रिलेशन को क्या बोलते हैं? many one function. Why it is many one? Because more than one element in the domain have the same image. More than one element of the domain has the same image. So this is called many one function. Is it clear? Now next is 1 1. Under what circumstances a relation is said to be 1 1 function? Now see, 1 2 3 4 4 elements are in domain. 1 2 3 4 4 elements are in range. This element has its image. This element has its separate image. This element has its separate image. This element has its separate image.
Every element in the domain has their separate image. That means this is a one to one relation. कोई दो एलिमेंट्स की सेम इमेज नहीं एग्जिस्ट करती है, हर एलिमेंट के पास अपनी एक सेपरेट इमेज है. अगर इस तरह का रिलेशन आपके पास आ जाए जिसमें सारी डोमेन के पास अपनी एक सेपरेट रेंज हो तो उसको हम बोलेंगे वन फंक्शन. तो दो तरह के फंक्शन अभी आपने डिस्कस किए. एक आपने डिस्कस किया मैनी वन फंक्शन, जब एक से ज्यादा एलिमेंट की सेम इमेज हो. दूसरा डिस्कस किया वन फंक्शन, जब हर एलिमेंट की इंडिविजुअल इमेज एग्जिस्ट करती है रेंज सेट के अंदर, तो उसमें क्या बोलेंगे वन फंक्शन. अच्छा, अब आगे इसकी फर्दर टाइप्स हैं. वन इनटू वन तो आपको पता चल गया. वन में क्या होगा कि हर एलिमेंट की सेपरेट इमेज एग्जिस्ट करेगी. नो व्हाट इज दिस इनटू? अब देखो, ये एक डोमेन सेट है, ये एक रेंज सेट है. अब इस रेंज के अंदर कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो अनऑक्युपाइड रह गए हैं, जिनकी इमेज एग्जिस्ट यहां नहीं करती है, जिनकी प्री इमेज एग्जिस्ट यहां नहीं करती है. डोमेन और प्री इमेज, ये रेंज और इमेज, इस रेंज की प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती है. उस केस के अंदर मैं इसको क्या बोलूंगा? इनटू फंक्शन. अदरवाइज क्या है? देखिए, ये तीन एलिमेंट है, ये तीन एलिमेंट है, हर एलिमेंट की सेपरेट इमेज एग्जिस्ट कर रही है, तो ये क्या है? वन है. ठीक है. बट यहां पे क्या है? कोडोमेन बड़ा हो गया, रेंज छोटा है. कोडोमेन मींस कि ऐसे एलिमेंट्स जिनकी इमेज नहीं एग्जिस्ट करती वो भी इसका पार्ट है. रेंज कितनी है? ये तीन एलिमेंट. कोडोमेन कितने हैं? 1 2 3 4 5. तो इस केसेस में क्या बोलूंगा मैं इसको? इनटू फंक्शन. वन इनटू फंक्शन. व्हेन देयर आर सम एलिमेंट्स लेफ्ट इन द रेंज सेट, कुछ एलिमेंट्स रेंज सेट में बाकी बच गए हैं, विच आर नॉट ऑक्युपाइड, जो ऑक्युपाइड नहीं है, बट द डोमेन मस्ट बी कंप्लीटली ऑक्युपाइड. लेकिन डोमेन कंप्लीटली ऑक्युपाइड है, लेकिन इसकी डोमेन में एग्जिस्ट इमेज प्री इमेज नहीं करती है, इनकी प्री इमेज एग्जिस्ट डोमेन में नहीं करती है. उस केस में मैं इसको क्या बोलूंगा? वन इनटू फंक्शन. अब अगला वन ऑन टू फंक्शन. वन तो आपको पता चल गया, हर की एक इमेज एग्जिस्ट करती है इंडिविजुअल. ऑन टू मीन कि जब रेंज सेट कंप्लीटली ऑक्युपाइड है. व्हेन द रेंज सेट इज कंप्लीटली ऑक्युपाइड, रेंज और कोडोमेन सेम है, उसको क्या बोलूंगा? ऑन टू फंक्शन. व्हेन द रेंज सेट इज कंप्लीटली ऑक्युपाइड, रेंज सेट इज कंप्लीटली ऑक्युपाइड एंड देयर इज नो एलिमेंट लेफ्ट इन द range set which is not occupied, this type of relation is called one on to function. ठीक है, ये वन ऑन टू हो गया. ये देखिए, इसकी इमेज अलग है, इसकी इमेज अलग है, इसकी इमेज अलग है, तो इसमें क्या है? कुछ भी इसमें खाली नहीं बचा है रेंज सेट में, तो इसको मैं बोलूंगा ऑन टू फंक्शन. ये फंक्शन कौन सा हो गया? यहां दो एलिमेंट की सेम इमेज एग्जिस्ट करती है, लेकिन हर एलिमेंट की अपनी इमेज है, तो इसको मैं बोलूंगा मैनी वन ऑन टू. ये कौन सा हो गया? मैनी वन ऑन टू है, ये ऑन टू. ये कौन सा हो गया? वन ऑन टू, क्योंकि हर एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है. यहां दो एलिमेंट की सेम इमेज एग्जिस्ट करती है, लेकिन रेंज सेट पूरे का पूरा ऑक्युपाइड है. यहां भी रेंज सेट पूरे का पूरा ऑक्युपाइड है, तो ये वन ऑन टू, ये मेनी वन ऑन टू. क्लियर? अब बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक रिलेशन फंक्शन कब नहीं बनेगा. अभी तक हमने किया कि जब रिलेशन फंक्शन बनेगा. कब बनेगा? वन मेनी वन इनटू, मेनी वन इनटू, वन ऑन टू, मेनी वन ऑन टू. ये सब हमने अभी डिस्कस कर लिए. अब एक रिलेशन फंक्शन कब नहीं होगा. अब देखिए, ये डोमेन है, ये रेंज है. अब डोमेन के अंदर एक ऐसा एलिमेंट आ गया जिसकी इमेज है ही नहीं. अगर इस तरह का केस आ जाए तो मैं उस रिलेशन को फंक्शन नहीं बोल सकता. दैट मीन्स आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसका आंसर ही ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है. कोई ऐसा आदमी आ जाए जिसकी इमेज ही एग्जिस्ट ना करती हो, जब शीशे के आगे वो खड़ा हो तो उसको शक्ल ही ना नजर आए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. सो दैट मीन्स इफ द डोमेन सेट इज अनऑक्युपाइड विद द रेंज, तो मैं इस रिलेशन को फंक्शन नहीं बोलूंगा. देन द रिलेशन इज नॉट सेट टू बी अ फंक्शन. व्हेन देयर इज सम एलिमेंट इन द डोमेन सेट which does not have any image in the range set, the relation is not said to be function. दूसरे केसेस में क्या है कि जब एक क्वेश्चन के दो आंसर आ जाएं. अब दो क्वेश्चन का सेम आंसर हो सकता है, दो एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती है, बट एक ही एलिमेंट की दो डिफरेंट इमेज नहीं हो सकती. अगर इस तरह से ऐसे आ जाए कि डोमेन में एक एलिमेंट है लेकिन रेंज में उसकी दो इमेज एग्जिस्ट कर गई, तो उस केस के अंदर मैं एक रिलेशन को फंक्शन नहीं बोल सकता. व्हेन टू एलिमेंट्स इन द डोमेन हैव द सेम रेंज, द रिलेशन इज नॉट सेड टू बी अ फंक्शन. क्लियर? सो सिर्फ दो ही ऐसे केसेस हैं जब रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता.
तो अब मैं आपके साथ एग्जांपल्स इसकी डिस्कस करूंगा, फिर मैं एक छोटी सी असाइनमेंट दूंगा, क्योंकि ग्राफ्स मैं कल करूंगा अलग वीडियो के अंदर, तो फिर मैं आपको छोटी सी असाइनमेंट दूंगा ताकि उस असाइनमेंट को आप सॉल्व करें। तो पहले तो एग्जांपल 10 एनसीईआरटी की, उसने एक रिलेशन दे रखा है x, y। x क्या है? डोमेन, y है रेंज, y किसके बराबर है? 2x, और x और y दोनों किसको बिलोंग करते हैं? नेचुरल नंबर को। तो वो कह रहा है कि डोमेन बताओ, तो डोमेन क्या है? उसने क्लियरली दे रखा है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो डोमेन क्या होगी? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। रेंज क्या है? y बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। क्लियर? तो ऑर्डर्ड पेयर क्या बन गए? अब x की वैल्यू में अगर 1 डालूं, 1 नेचुरल नंबर है, तो y कितनी होगी? 2, तो 1, 2। x की वैल्यू 2 डालूं तो y 4, x की वैल्यू 3 डालूं तो y 6, x की वैल्यू 4 डालूं तो y 8। अब देखो डोमेन मैंने यहां लिखी 1 2 3 4, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। रेंज 2 4 6 8, 2 4 6 8। अब देखो हर एलिमेंट की सेपरेट इमेज एग्जिस्ट कर रही है, तो ये कौन सा फंक्शन हो गया? 1 1 ऑन टू फंक्शन, क्योंकि रेंज सेट जो है वो अनऑक्युपाइड है, सारे का सारा ऑक्युपाइड है, कोई भी एलिमेंट यहां अनऑक्युपाइड है ही नहीं, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? 1 1 ऑन टू। अब एग्जाम्पल 11, अब एग्जाम्पल 11 में उसने ये कहा है कि ये मैंने आपको 3 रिलेशंस दे दिए, इनमें से बताओ कौन सा फंक्शन है। फर्स्ट इज 2 1 3 1 4 2, मैंने इसका एरो डायग्राम बनाया, डोमेन मैंने लिख ली 2 3 4 इस तरफ, और रेंज लिख ली 1 1 2 इस तरफ 1 2। अब 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 है, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 है, 4 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 है। अब देखो सारी की सारी डोमेन ऑक्युपाइड है, दो एलिमेंट की सेम इमेज है, तो ये कौन सा हो गया? मैनी वन। और ये पूरी की पूरी ऑक्युपाइड है रेंज, तो मैनी वन ऑन टू, दिस इज मैनी वन ऑन टू। अब इसमें आ जाइए 2 2 2 4 3 3 4 4, तो 2 3 4 2 4 3, 2 की इमेज 2, 2 की इमेज 4। अब देखो एक एलिमेंट की 2 इमेज आ गई, ये पॉसिबल ही नहीं है, सो दिस इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज 2 हैज इट्स 2 इमेज 2 एंड 4, तो ये फंक्शन नहीं है। अब उसके आगे देखिए, ये मैंने एरो डायग्राम बनाए दोनों के, तो हर एलिमेंट की एक सेपरेट इमेज एग्जिस्ट करती है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? 1 1 ऑन टू फंक्शन। इज इट क्लियर? सो इसको कम से कम 2 बार देखिए, उसके बाद ये मैं एक असाइनमेंट आपको दे रहा हूं, आई विल क्लिक अ फोटोग्राफ एंड आई विल पोस्ट इट ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। तो प्लीज सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, देन द कॉन्सेप्ट विल क्लियर टू यू। टुमारो वी विल डिस्कस हाउ टू प्लॉट द ग्राफ्स ऑफ द फंक्शन। ओके, थैंक यू।